So, hello everyone. Let's start with logical operator. Logical operator. And at the same time, you will get one more operator. एक और operator आपको मिलेगा जो कि bitwise operator है. दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं. सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड विद द रिलेशनल ऑपरेटर एंड आई जस्ट गिव वन important overview about relational operator that is used to form some relational expression, and the output of that relational expression will always be some Boolean value. This you need to keep it. If I'm talking about Boolean value, then it is either true or it is false. Okay. So if you have not seen the previous class, please go and watch the previous class and then continue with this particular session. So here now we are talking about logical operator and logical and or not. These all are the logical operators. So logical operator is used to form logical expression. Logical operator को use करके हम लोग logical expression बनाते हैं. And again, the result of logical expression will be Boolean value, that is true or false. ये आप ध्यान रखना. And आप लॉजिकल ऑपरेटर का एक ऐसे ट्रूथ टेबल पहले देख लीजिए and then I'll come to the examples also. ट्रूथ टेबल क्या है कि if suppose there is a logical expression, let's consider this is a logical expression and we are applying some logical operator in that. So if A, which is there, and if this is false, B, what we have, this is also false, then the A and logical and B, when you are applying, then this is also going to be the false. When you are applying AND operator. Similarly, if you are applying OR, then again this is also going to be the false, and A, if it is false, then not of A is going to be the true. मतलब इसका opposite होगा ये वाला. अगर ये false है तो true होगा, true है तो ये false होगा. Whereas when we are applying false and true, false है और ये true है, result and operator आप apply करते हैं, so this is going to be the false. And अगर or operator हम apply करते हैं, so this is again going to be the which one now? True. And again this one is also true because it is false, so this will be the false. True and false, so this will be false and this will be true, 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 true. So if it is true, then this also will be true and this also will be true, and then आप ऐसे. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक expression लिखा है int a is equal to 10 and int b is equal to 20. So you can consider this whole as an A, you can consider this whole as an B. So if it is a logical expression, something we have applied, relational expression we have applied, so either this could be true or this could be the false or this could be depending on the value. ठीक है? तो ये जो भी value, let's say मान लीजिए ये true हुआ and we are applying, this may be the true. So the result of this by applying and, this is going to be the true. So and में आप सिंपल सा क्या लॉजिक समझेंगे कि ये and है अगर, तो कोई भी एक false है तो वो false होगा and अप्लाई करेंगे तो. कोई भी एक true है so वो true होगा. And definitely when we are applying the not, then opposite of that is going to be the not. ये है हमारे पास, that is the logical operator. और bitwise operator used to works on individual bit position. ठीक है ना? So उसमें left shift है, right shift है, negation है, बहुत सारा कुछ है. So that we will come to that. But before that, or before starting to that one, let's move to the some logical operator. कि क्या है ये logical operator? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ
कि बाय शोइंग द नोट्स मैं आपको इस बार पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको एकदम मैप्ड रहे आपकी स्टडी. ओके, लेट्स सी नाउ फर्स्ट व्हाट इट इज नाउ. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू फॉर्म अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं. द ऑपरेंड्स ऑफ दीज ऑपरेटर्स विल बी बूलियन वैल्यू, बूलियन टाइप. ऑपरेंड्स कौन होंगे? जैसे हमने बताया कि A and B when I am applying, so जो A होगा ये भी some either true और false होगा, ये B होगा इसका भी true और false होगा, ये दोनों में से ही कोई एक होगा. and this is how it is going to work. ठीक है ना? so it will be either boolean type. Logical expression will be returned to the boolean type. It could be either true or it could be the false. तो ऑपरेंड को आप यहां पे समझिए. ऑपरेंड 1 हो गया, ऑपरेंड 2 हो गया. जब इन दोनों के बीच का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये ऑपरेंड भी बूलियन टाइप का होगा, ये ऑपरेंड भी बूलियन होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी बूलियन होगा. ठीक है, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन ऑपरेंड 1 की जगह पे रहेगा, एट लास्ट इट इज गोइंग टू रिटर्न द बूलियन वैल्यू. ये ऑपरेंड 1 जो होगा, जो इसका आउटपुट होगा, दैट विल बी द बूलियन वैल्यू. जैसे A इज लेस देन मे बी B आपने लिखा, ठीक है ना, या B इज लेस देन C समथिंग. तो यहां से जो आउटपुट होगा, इट कुड बी आइदर ट्रू और इट कुड बी द फॉल्स, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे. सो ये लॉजिकल नॉट है, ये फिर एंड है, एंड देन ये फिर लॉजिकल है. ठीक है, अब इसमें भी फिर से बात करें तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर. इट इज यूज्ड टू रिवर्स द रिजल्ट. रिवर्स द रिजल्ट मतलब अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट इसका फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा. ये मैं आपको यहां पे ऑलरेडी दिखा रखा हूं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. थोड़ा आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि वी विल क्रिएट सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस, कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके विल ट्राई टू क्रिएट सर्टेन एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक ये ट्रूथ टेबल बना रखा है, और दैट ऑलरेडी आई हैव शोन इट टू यू. ठीक है ना, सिंस इट इज वेरी सिंपल, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग अगर एक आप ऐसे समझो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा है यहां पे. राइट वन एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड, विल राइट वन एग्जाम्पल and we'll make it package, and here p12 I'll write, and after writing p12 new, that is the class, I'll write it here. Class, if in case I'm writing, or here I'll write JTC12 is the name of the class. Okay, this is one class I have written. अब ध्यान से समझिएगा. मान लो मैंने कोई int of a इज इक्वल टू एक 10 लिखा, int of b इज इक्वल टू 20 लिखा, int of c इज इक्वल टू हमने 30 लिख दिया. ये एक मैंने सिंपल से लाइन लिखा. ठीक है, हम लोग यहां पे देखिए, एक बात समझना. जैसे अगर मैं यहां पे आपसे लिखता हूं या मैं बोलता हूं आपको ट्रू, एंड मैं यहां पे आपको बोलता हूं फॉल्स, तो जावा में बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स का मतलब यही होता है, यही ट्रू है, यही फॉल्स है. ठीक है, फॉल्स मीन्स अगर हम जनरली किसी एक्सप्रेशन के केस में लिखते हैं, सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया. ट्रू का मतलब है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया. बट इसका इक्विवेलेंट ऐसा नहीं है कि ये 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ जावा. सिंपली ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब फॉल्स. अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे लॉजिकल एक्सप्रेशंस की. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. अब एक काम हम लोग कर सकते हैं यहां पे, जैसे हमने system.out.println लिखा, या फिर ऐसे लिखते हैं. यहां पे मैं लिखता हूं बूलियन
B11 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, A इज लेस देन B, हमने लिखा ये A इज लेस देन B, एंड B इज लेस देन C। ये मैंने एक एक्सप्रेशन यहां पे स्पेसिफाई किया। दिस इज वन एक्सप्रेशन आई हैव स्पेसिफाइड हियर। अब देखो यहां पे ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया, ये हमने क्या किया, लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस आई हैव क्रिएटेड, एंड इफ इट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, इफ इट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, आप ध्यान से समझना, तो लॉजिकल एंड के केस में कैसे प्रोसेस होता है, इस बात को आप बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए। देखो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कि 1, और ये हमारा एक एक्सप्रेशन है विच इज 2। अब इसमें से ये जब प्रोसेस करेगा तो इसकी वैल्यू इधर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, एंड इसकी भी वैल्यू इधर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, क्योंकि एक क्या है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये इतना क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो आउटपुट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द Boolean value, and that could be either true and false. अब यहां पे लॉजिकल एंड के केस में क्या होगा कि ये पहले इवेल्युएट करेगा इसको, मान लीजिए अब ये ट्रू देगा अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन, इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रिटर्निंग ट्रू, अगर ये पहला एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो ही जाके ये इसको इवेल्युएट करेगा, नहीं तो इवेल्युएट नहीं करेगा, या इसको चेक, सेकंड एक्सप्रेशन को चेक नहीं करेगा। इफ इट इज रिटर्निंग ट्रू, इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रिटर्निंग ट्रू, देन ओनली इट विल इवेल्युएट एक्सप्रेशन नंबर 2, और एल्स इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू इवेल्युएट इट। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि अगर पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू, इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इटसेल्फ अगर यही फॉल्स निकल जाए, तो एंड अगर ये ट्रू भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, ए एंड बी, मतलब ए एंड बी तो हमने लगाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो अगर हमें पता है बूलियन वैल्यू है ना, क्या हुआ इंटरनली, कैसे काम किया, क्या किया, नहीं फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि फाइनली रिजल्ट क्या है, फॉल्स है या फिर ट्रू है। इसी के बेसिस पे वो इवेल्युएट होगा, इसी के बेसिस पे वो चलेगा, बाकी किसी चीज के बेसिस पे वो नहीं चलेगा। तो उसे ये कहना है कि भाई अगर फर्स्ट वन जो है ये फॉल्स दे देता है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इवेल्युएटिंग द सेकंड वन, सेकंड एक्सप्रेशन, या फिर इसके साथ 10 और एक्सप्रेशन है तो उनको भी इवेल्युएट करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने कोई एक ऐसा कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरह से स्पेसिफाई किया है, मान लो आपने, सपोज यू हैव स्पेसिफाइड समथिंग, वेट अ सेकेंड, आप ध्यान से देखिए, आप यहां पे देखिए, मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन दिया, क्या एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन 1 है ये, एंड आपने लगाया एक्सप्रेशन 2, लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन 3, we are applying logical and like that there are n number of expression is available here. Now the point is कि इसमें से मान लो ये कोई भी एक फॉल्स रिटर्न कर देता है, इनमें से कहीं भी किसी स्टेज पे एक फॉल्स रिटर्न करता है, सो द पूरे वैल्यू ही फॉल्स हो जाएगी, एंड आई नीड नॉट टू इवेल्युएट ऑल एंटायर वन, ये हमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एट द एंड रिजल्ट विच इज देयर, जो लास्ट में आपका रिजल्ट आया, वी कैन कॉल दिस वन एज एन ओके फॉल्स, वी इवन नो नीड टू चेक इट आउट, हमें उसे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है।
अब ध्यान से समझ रहे हैं, हमें उस पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. ठीक है. अब अगर हम ये लॉजिकल एंड की बात कर रहे हैं, हमने ये लिखा, लेट्स सी दैट व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है उसका. सो द आउटपुट व्हाट वी हैव रिटन हियर इज एट द लास्ट वन, इफ यू विल सी, इट्स ट्रू. ठीक है. लेकिन यहीं पे मैं चेंज कर दिया, मैंने एक्सप्रेशन को बदल दिया. सो नाउ यू सी व्हाट इट इज गिविंग, दैट इज द फॉल्स. सिमिलरली इफ विल राइट, हम लोग ऐसे और भी कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं. वी कैन राइट डाउन सम मोर कंडीशंस लाइक दिस. ठीक है. सो वो ऐसे ही होंगे, दैट इज गोइंग टू बी एज इट इज. अब यहीं पे हम लोग बात करें, एक और है विच इज अ बिटवाइज एंड. बिटवाइज एंड है. मान लो हमने एक एक्सप्रेशन इसी तरह से बनाया, स्पेसिफाई किया, एंड मैंने एज इट इज इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग B11 I'll write here B12, एंड इनसाइड दिस एक एक्सप्रेशन ही हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं. एंड वन सेकेंड, यहां पे मैंने लिखा ऐसे, लिखने के बाद हमने B12 लिख दिया. यहां पे ये हमने क्या अप्लाई किया है, व्हाट आई हैव अप्लाइड हियर, दैट इज द बिटवाइज एंड आई हैव अप्लाइड. ये हमने जो अप्लाई किया यहां पे, ये है आपका बिटवाइज एंड. अब ध्यान दीजिएगा, बिटवाइज एंड के काम करने के तरीके में डिफरेंस है कि अगर यहां पे फर्स्ट एक्सप्रेशन इधर ये ट्रू रिटर्न करे या फिर ये फॉल्स रिटर्न करे, फर्क नहीं पड़ता है. इवन इफ इट रिटर्न्स ट्रू और इवन इफ इट रिटर्न्स फॉल्स, इट इज गोइंग टू चेक द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो. इट विल चेक द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो. ये सेकेंड एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा. ठीक है. विच इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग एज इन कंपेयर टू द लॉजिकल एंड. सो ये आपको ध्यान से समझना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए. अब हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं. ये आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहां पे दिखा दिए. नाउ ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. सो ये देख लीजिए एक बार आप, दैट द सेम एक्सप्रेशन, सेम थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. So in that, if you will see, these are the binary operator OR and logical AND to combine expression, logical expression. So एक ये हो गया, ये बीच में AND हो गया, ये OR हो गया. ठीक है. Logical expression result will be the true or false. ये मैंने एक आपको ट्रूथ टेबल दिखाया था कि कैसे ये काम करता है. ट्रू ऑपरेशन 1, तो इसमें आपको OP1 कंसीडर कर सकते हैं, OP2 कंसीडर करते हैं. एक जस्ट एज एन एग्जांपल ले लिया गया. सो ट्रू एंड ट्रू, इफ इट इज रिटर्निंग इट विल रिटर्न द ट्रू. सो लाइक दैट आप ये इसको एक बार देख सकते हैं. ठीक है ना. और ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूं. ये एग्जाम्पल आप एक बार ट्राई करिएगा, बिकॉज इन द सेम फॉर्मेट आई हैव गिवन, बट यहां पे डायरेक्टली हमने वैल्यू दिया हुआ है. ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा. ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा. ट्रू फॉल्स एंड ट्रू आपका फॉल्स होगा. फॉल्स एंड फॉल्स आपका फॉल्स होगा. ये आप एक बार इसको देख लेना. ठीक है. अब मैंने यहां पे आपके लिए एक और डिफरेंट ऑप्शंस यहां पे मैंने दे रखा है. एंड व्हाट आई हैव गिवन, जैसे a इज इक्वल टू 12, सो आई हैव गिवन हियर सर्टेन एक्सप्रेशन आई हैव रिटन. ये आप देखिए एंड ये आप इसको प्रैक्टिस करिए, जस्ट चेक इट आउट. द सेम कॉन्सेप्ट हियर आई हैव अप्लाइड और, हियर आई हैव ऑल्सो अप्लाइड और एंड बिटवीन द सम एक्सप्रेशन. सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पे दे रखा है. बेटर कि आप इसको एक बार देखें. न्यू ऑपरेटर, वी विल कम टू दैट. ठीक है. नाउ बिफोर दैट, नाउ we will first see the bitwise operator. Bitwise operator we will now
see what is that bitwise operator, what exactly bitwise operator is। ठीक है, bitwise operator हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे, तो ध्यान देना आप। bitwise operator के केस में, bitwise operator के केस में हम लोगों ने मान लो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको एक काम करते हैं, मैं यहां से इसे हटा देता हूं एंड विल राइट हियर दैट इज bitwise ऑपरेटर। ये मैंने बिटवाइज ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर यूज्ड टू वर्क ऑन इंडिविजुअल बिट पोजीशन। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल इसमें अलग अलग टाइप के लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, डिफरेंट वो है। सो से फॉर एग्जांपल मे बी आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 9 दिया। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 9 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी पोजीशन में, बाइनरी नंबर में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू गेटिंग इट? आप ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे देखिए ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड देयर आर 2 राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जब हम लोग बाइनरी की बात कर रहे हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी नंबर, तो देखिए ये हो गए हमारे बिट पोजीशन। सो सबसे पहले आप एक बात समझो, किसी भी वैल्यू को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ को हम लोग 8 बिट के अंदर कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एंड कुछ को 16 बिट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं, जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये रहेगा इधर, दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट, एंड ये जो है आपका दैट इज द राइट शिफ्ट, ऐसे रहेगा ये, एंड ऐसे रहेगा, मतलब बिट्स पोजीशन जो है राइट साइड शिफ्ट करेंगी। ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नंबर एक ले लो, जैसे नंबर क्या लेना है आपको, एनी नंबर यू कैन टेक इट डाउन, मे बी यू हैव टेकन 16, एक आपके पास नंबर है विच इज 16। ठीक है, सो ऑन दिस 16 आई एम अप्लाइंग लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, हमने 1 लगाया राइट शिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मे बी इसको हम 16 डाल देते हैं, आई विल राइट इट हियर 16, एंड ऑन द सेम 16 I'll write A1 I am writing। हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने इस बिटवाइज ऑपरेटर में दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑफ बाई 1, हमने मतलब कि जो बिट पोजीशंस होंगे ए की विच इज 16 की, ए की वैल्यू 16 है, तो जो बिट पोजीशन होगा उसे हम 1 टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस पहले इसका हम लोग देखते हैं कि ओके what is the output of this। so what output we are going to get here, that is 32 is the output we are going to get। ठीक है, मतलब हमने एक बिट पोजीशन शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट साइड, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गॉट डबल। वैल्यू जो है वेरिएबल की वो सीधे डबल हो गया। तो अब अगर हमें 16 का रिप्रेजेंटेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, सो हाउ विल वी डू, हमें 16 का रिप्रेजेंटेशन करना है। सो पहला पोजीशन क्या होगा 1, ठीक है, फिर क्या होगा 2, फिर होगा 4, ये बिट पोजीशन है, फिर होगा 8, ये अभी 4 बिट हुआ, फिर क्या हो गया 16, फिर हो गया 32, 1 2 3 4 5 6, ओके 32, फिर क्या हो गया आपके पास 64 हो गया, 64 के बाद क्या हो गया 128, सो 1 वेट ऐसे आ गया, ओके। सो नाउ विल सी 1 2
3 4 5 6 7 8 8 बिट का ये रिप्रेजेंटेशन है। 8 बिट का ये हमने रिप्रेजेंटेशन किया। अच्छा जी, इस 8 बिट के अंदर हमें 16 को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। हमें 16 को रिप्रेजेंट करना है। तो समझो आप, जिस बिट पोजीशन के आगे, जो मतलब इसमें से हमें क्या करना होता है कि मान लो हमें 16 रिप्रेजेंट करना है, तो 16 को हम कैसे, शॉर्टकट में आप समझिए, तो 128 बिट पोजीशन को क्या हम इंक्लूड करेंगे क्या 16 के लिए? नहीं। तो जिसको इंक्लूड नहीं करना है वहां 0 डाल दीजिए। 64 को हम इंक्लूड करेंगे? नहीं, इसको भी 0 डाल देंगे। 32 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, इसको 0। अब हमें 16, तो ऐसा देखना है कि 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 + 2 14 + 1 15। मतलब ये कि अगर हम इन सारे बिट्स को इंक्लूड करें तभी भी 16 नहीं होगा। सो बट हम अगर केवल एक बिट को यहां पे 1 लिख दें एंड रिमेनिंग अदर इज 0 0 0, देन ये हमारा 16 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द 16 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 16 को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम एक बिट पोजीशन को इंक्लूड किए हैं, रिमेनिंग बिट पोजीशंस को इंक्लूड नहीं किए हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन 16। अब दूसरी बात आप समझिए, यहां पे दूसरी बात क्या करना है इसमें? दूसरी बात हमें यह ध्यान देना है, दूसरी बात हमें यह ध्यान देना है, अब मान लो इसी तरह से हमें 20 को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें 20 रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? अपने बिट पोजीशंस को लिख लेंगे। एक बार लिख लीजिए, 1 which is 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बिट। अब हमें क्या करना है? 20 रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, तो हम 0 लिख देंगे। इसे इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, 0। 32 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, वी विल राइट 0। ओके, 6 हमें 20 रिप्रेजेंट करना है। हमें वैल्यू क्या है? 20। तो 16 1, अभी हमें और कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो ये 0 हो गया। 4 चाहिए तो हम सीधे 4 को, ये 1 को इंक्लूड कर लेंगे और ये 0 0 हो जाएगा। सो जहां पे 1 है, जिस बिट पोजीशन के पास 1 है, सो उस बिट पोजीशन, तो हम लोग 16 + 4 16 + 4 हमें 20 मिल गया हमारा। ठीक है ना? सो ये हमारा बिट पोजीशन होगा 20 इसका। अब हम इसमें अगर बात करते हैं, राइट शिफ्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, तो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। तो 8 बिट के बाद अब नेक्स्ट बिट में हमारा वैल्यू जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 256 512 ऐसे करके और आगे चला जाएगा 8 बिट, और ये यहां से लेके जाएगा आगे। ठीक है ना, स्लॉट जो है। सो अब अगर हम इसे हम राइट शिफ्ट करते हैं, तो अगर हमने इसे राइट शिफ्ट 16 को बाई 1 किया है, सो ये 0 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 1 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, 0 0 एंड 0, और ये लास्ट वाला 0। हमने बिट शिफ्ट किया, सो नाउ द वैल्यू बिकम्स 32। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम 20 को भी 1 बिट इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो एक बिट इधर 256 ये आप रख लीजिए। सो ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास 0, एंड नाउ 16 की जगह पे 1 आ गया, ये आ गया, एंड 0 0। Here this is 1, it is coming 0 0. So अब कितना हो गया ये वैल्यू? 20 था, हमने 1 बिट पोजीशन शिफ्ट किया, सो 32 एक के पोजीशन पे 32 है, एंड नाउ 8 विच इज देयर, सो 32 + 8 40 हो गया वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इफ वी आर जस्ट शिफ्टिंग इट इन अ लेफ्ट साइड, सो वैल्यू विल गेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल 1, क्योंकि वो वैल्यू, मतलब सॉरी, राइट शिफ्ट जब हम करेंगे तो वैल्यू विल गेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट।
इसको मैं अगर यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल इंट ऑफ मे बी, कितना आप लिखना चाहते हैं, इंट ऑफ मे बी b इज इक्वल टू द 20 आई एम राइटिंग, एंड हम लोग b किए, राइट शिफ्ट हमने कितना कर दिया, हमने राइट शिफ्ट कर दिया, यहां पे राइट शिफ्ट कर दिया। एक बार आप दोनों की वैल्यू देख लीजिए, जस्ट चेक इट आउट। ये 10 आ गया क्या? अब ये 1 बिट हो गया, मान लो इसे हम 2 बिट शिफ्ट कर दें, तो 2 बिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। इसी को हम या तो राइट शिफ्ट में हम मान लो इसको 20 बिट पोजीशन शिफ्ट करेंगे, और इसे भी हम 20 बिट पोजीशन शिफ्ट करेंगे, तब क्या होगा, हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये देखो, ये जा रहा है क्या, अब 20 बिट शिफ्ट, मान लो 20 के बाद हम इसे 30 बिट पोजीशन शिफ्ट कर दिए, तो जस्ट वेट, और इसे भी हमने 30 बिट पोजीशन शिफ्ट कर दिया, तो आप समझना इस बात को, 0 0 31 किया तो 31 किया तो अभी भी देखो 32 कर दिया, तो एक साइकिल कंप्लीट होने का मैं वेट कर रहा हूं। आ गया क्या ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर द ओरिजिनल बिट, मतलब आप जब 32 बिट शिफ्ट करते हैं तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साइकिल किस चीज की कंप्लीट होती है, जैसे ये जो बिट पोजीशन बनाए हो, तो अब जब 256 से 128 से बाहर निकलेगा तो 256 512 1024 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो बिट अपने आप में जब ये पूरे बिट शिफ्ट होंगे तो फिर कहां से आएगा, फिर आ जाएगा ऐसे। सो दैट विल आफ्टर 32 बिट पोजीशंस इट विल गेट इट्स ओरिजिनल वैल्यू बिट शिफ्ट ऑपरेटर में। ये आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज राइट शिफ्ट एंड दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एज वेल एज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड एंड बिटवाइज एंड, दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। लॉजिकल एंड जब आप किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में लगाते हैं, सो द मीन्स इफ इट इज 2 एक्सप्रेशंस, सो द रिजल्ट means the evaluation of second expression will completely depends on result of the first expression, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट में आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको मैंने बता रखा है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड बिटवाइज एंड ये बिटवाइज एंड, ये आपको मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने ऑलरेडी इसमें देख रखा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा आपका नोट्स देख लेते हैं, और नोट्स में हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ जी भाई कहीं कुछ और इसके अंदर मैंने दिया हुआ है जो ऐसा तो नहीं कि हम लोग छोड़ रहे हैं। सो ओके वेट, conditional operator, okay, yet we have not seen the instance of operator also we have not seen, logical and or ये ठीक हमने देख लिया, अब ये हमने समझ लिया, ठीक है। ओके ओके ओके, अब और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वन, नाउ इट इज द न्यू ऑपरेटर। हमारे पास न्यू ऑपरेटर क्या है, ठीक है ना। न्यू ऑपरेटर कहां यूज होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आप एक सिंपल सा लाइन समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास लिखा A, इफ आई आस्क यू टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो आपके पास A ऑफ A1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ A, ये आपका एक ये न्यू ऑपरेटर है। इसको बस अभी ध्यान रखिए, इसको बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक न्यू ऑपरेटर है। सो बाय यूजिंग दिस न्यू ऑपरेटर इट इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी इनटू द हीप, ठीक है ना। ये न्यू ऑपरेटर से जब हम मेमोरी मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा ये हीप में। और इन सिंपल टर्म यहां पे आप सिर्फ इतना समझो कि बाय यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमने ऑब्जेक्ट बनाने के देयर आर अदर वेज ऑल्सो, बट यस सिंपली बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड यू कैन से,
और ऑपरेटर यू कैन से बाय यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। अभी इतना समझे। एंड विद दिस वन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी ये आगे के हमारे चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में आएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, what is happening whenever you are trying to create any object of a class, what all the internal things which is happening, ये सब कुछ हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे हमने, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स बिकॉज दिस इज सिंपल एग्जाम्पल एंड ये आप यहां पे भी देख के समझ सकते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम राइटिंग क्लास हेलो, आई हैव रिटन वन क्लास हेलो, क्लास हाई, एंड इनसाइड दिस सो वन एक हेलो का ऑब्जेक्ट बना दिया, हाई का ऑब्जेक्ट बना दिया। यहां पे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना है, एंड इफ यू वांट मी टू राइट एन ऑब्जेक्ट, राइट द एग्जाम्पल फॉर दिस, आई कैन राइट इट एंड आई कैन शो इट टू यू। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहां पे मैंने मान लो एक और फॉर एग्जाम्पल क्लास लिखा, क्लास हेलो, आई एम राइटिंग वन क्लास हेलो, आई हैव रिटन क्लास ऑफ हाई, आई हैव रिटन, ये मैंने दो क्लासेस, आई हैव स्पेसिफाइड टू डिफरेंट क्लासेस आई हैव रिटन, एंड लेट मी रिमूव ऑल दैट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ आई विल राइट हेलो ऑफ h1 इज इक्वल टू न्यू हेलो। ओके फाइन, हाई ऑफ HI is equal to new है। This is two objects what you have done। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेलो मेक इट h1 एंड हाई। ओके, नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है यहां पे कि जब भी आपने ये ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से समझना, क्लास क्या है, एक सिंपल सा टर्म समझो, क्लास क्या है, जैसे हेलो आपने क्लास लिखा है, वी हैव रिटन अ क्लास हेलो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास हेलो लिखा। सो व्हाट इज दिस क्लास, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी क्लास एक सेम थिंग, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, पहले से ही बना हुआ डेटा टाइप है। सो अगर हमें कोई एक वेरिएबल इंट टाइप का बनाना है, सो वी विल राइट इंट ऑफ ए। सो ये डेटा टाइप हो गया इसका, इस टाइप की एक ये वेरिएबल हो गया। अब हमारे पास जो टाइप है दैट इज हेलो, दैट इज हाई। सो अगर हमें इस टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है, सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेलो ऑफ h1, ठीक है। h1 क्या है यहां पे, h1 इज बेसिकली अ रेफरेंस वेरिएबल है ये h1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ये हाई क्या है आपका, हाई ऑफ HAI ये है, तो ये हाई क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। फॉर दिस h1 और हाई रेफरेंस वेरिएबल, फॉर हाई रेफरेंस वेरिएबल हाउ मच, 8 बाइट ऑफ मेमोरी विल बी अलोकेटेड, 8 बाइट ऑफ मेमोरी विल बी अलोकेटेड, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि वी वांटेड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, whatever members of a classes are available for that one special memory location will be allocated inside the heap memory। heap memory के अंदर एक special memory allocate हो जाएगा, so that हमें जब भी कुछ वहां से एक्सेस करना है, so with that reference we can access। जैसे मान लो हमने यहां पे कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा, तो क्या होगा कि एक h1 8 बाइट ऑफ मेमोरी अलोकेट किया, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इसकी वजह से क्या होगा, एक हीप एरिया होता है, आप पढ़ोगे आगे, इस हीप एरिया के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने मेंबर्स होंगे उनके लिए क्या होगा, यहां पे मेमोरी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमें इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, इफ आई वांटेड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, देन व्हाट वी हैव टू डू, आई नीड टू यूज h1 डॉट, जो भी मेंबर होगा एक्सेस करेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब है। तो ये इसको बनाने के लिए वी नीड टू यूज दिस न्यू ऑपरेटर, एंड दिस इज व्हाट द न्यू ऑपरेटर इज। ये मेरी बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट आप समझना, इसमें न्यू ऑपरेटर हो गया आपके पास, ओके, न्यू ऑपरेटर हो गया, फाइन 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 फाइन। ओके, एक चीज और है इंपॉर्टेंट बात। अब मान लो जैसे कि हमने यहां पे h1 को प्रिंट किया,
और हमने क्या लिख दिया यहां पे HAI लिख दिया, हमने क्या लिख दिया H1 लिख दिया, और हमने नेक्स्ट क्या लिख दिया, आज मैंने HAI लिख दिया कुछ, ठीक है। सो ये जब आप प्रिंट करोगे तो ये एक रेफरेंस प्रिंट करता है, रेफरेंस प्रिंट करता है, ठीक है, ये रेफरेंस प्रिंट करता है। डोंट कंसीडर इट एज एन एड्रेस, इसको आप एड्रेस मत कंसीडर करिए। देखिए जैसे आउटपुट आया आपके पास, सो यू गॉट सर्टेन थिंग्स, यू गॉट सम आउटपुट, ठीक है। सो ये दोनों इसको रेफरेंस बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे, जैसे आप अभी टर्म्स ध्यान रख लीजिए, जैसे हैश कोड हो गया, उस क्लास का रेफरेंस हो गया। वी विल नॉट कंसीडर दिस एज एन एड्रेस, हम लोग इसको एड्रेस नहीं कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर इट एज एन रेफरेंस, ठीक है। अब इसी तरह से, मतलब ये आपको क्लियर हो गया, तो ये अभी आप ध्यान में रखना, आगे में काफी आएगा, सिंस वी आर इन वेरी बेसिक, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ सुपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब यहां पे एक और अपने को कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट आइल इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। मैंने क्या बोला था, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू check whether that specified class object reference is available inside that reference variable or not. For example, let me show you through with this example. यहां पे मैं इसे हटा देता हूं। सबसे पहला काम, मैंने यहां पे एक क्लास लिख दिया, एक और क्लास आई हैव रिटन A and then another class I'll write that is the B, और एक कॉन्सेप्ट है जो आप आगे पढ़ोगे विच इज एक्सटेंस ऑफ बी। सपोज आई हैव रिटन लाइक दिस, ये मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया, ओके, बी एक्सटेंस ए, फाइन। सो ये हमने एक लिख दिया, टेंशन नहीं लीजिए। एक्सटेंस का बेसिक मतलब आप समझो, एक क्लास ए है, एक्सटेंस का मतलब इनहेरिट करना होता है, एक्सटेंस का मतलब इनहेरिट करना होता है। तो क्लास बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, मतलब इसके जितने भी क्लास लेवल मेंबर्स होंगे दैट विल बी अवेलेबल फॉर द क्लास बी। डिपेंड्स ऑन कि कौन सा एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ये टर्म आपको आगे चल के समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, आपको, आप ध्यान से समझिएगा कि मान लो हमने एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया हेलो ऑफ h1, simply h1 is equal to, I'll write null, I'll write here null, hello of h2 is equal to hello, I'll write hello of h3 is equal to, okay, not hello of h3, hi of HAI1 is equal to new of hi, I'll write, और फिर मैंने लिखा a of A1 is equal to new of A, मैंने एक ये कॉन्सेप्ट लिख दिया, B of B1 is equal to new of B, I'll write, and एक और लाइन हम यहां पे लिख रहे हैं, आप इसको A of A2 is equal to new of B। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अभी आप रुकिएगा समझने के लिए, we'll understand this in a more detail way। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, मे बी सपोज यू हैव रिटन दिस पर्टिकुलर कोड एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटन 100 लाइन्स ऑफ कोड, सो हाउ विल यू कम टू नो दैट h1 कंटेन्स व्हाट, h1 के अंदर क्या है, h1 है, h2 है जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, या फिर HAI1 है, A1 है, B1 है, A2 है, इसके अंदर क्या अवेलेबल है, हमें कैसे। सो फॉर दैट रीजन, जैसे देखो यहां पे हमने ये लिखा h1 इंस्टेंस ऑफ, एक ऑपरेटर है, मैं क्या लिख रहा हूं, h1 इंस्टेंस ऑफ, I'll write hello, I wanted to check h1 contains hello class object reference or not। मैंने क्या बोला, h1 contains hello class object reference or not, I wanted to check this। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या h1 hello class का object reference को होल्ड करता है या नहीं करता है। बट इन फैक्ट यहां पे आप अगर देखोगे, सो
H1 होल्ड्स नल, मतलब अगर H1 की मैं बात करूं, 8 बाइट ऑफ मेमोरी allocated and inside this what is available, that is null is available. So on what basis it will check? Okay, let's run it first. इसे रन करते हैं एक बार, ठीक है ना। सिंस H1 के अंदर कुछ है ही नहीं ना चेक करने के लिए, इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू चेक। ओके, सो एक बार इसे हम लोग चेक करते हैं और चेक करते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। एक यहां पे मैं लिख लेता हूं JTC 12, और जिसे आपको पता चलेगा कि ओके ये आउटपुट इसी का है, बिकॉज वी नीड टू चेक इट आउट। ये हमेशा ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस से आपको बहुत आसानी हो जाती है। सो सी देखो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। H1 holds instance of which is hello, that is nothing is available, so it is giving the false. Okay जी। अगर यही H2 इंस्टेंस ऑफ हेलो हम लोग लिख रहे हैं, वी वांटेड टू सी H2 किसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस को होल्ड करता है। देखिए अगर इसका मैं एक बार डायग्राम आपको बना देता हूं, तो इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, तो H2 हो गया, ये एक 8 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेशन है, और ये 8 बाइट ऑफ जो मेमोरी एलोकेशन है ये होल्ड करता है एक मेमोरी एलोकेशन है जिसे हम एक तरह से ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर देयर आर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस व्हिच इज अवेलेबल। इसको हमने यहां पे स्टोर कर रखा है। मान लो इसका 1024 एक रेफरेंस है, रेफरेंस मींस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन एक्सेस इट। सो 1024 आपने लिखा एंड ये यहां से ऐसे रेफर कर रहा है। ओके, so I'm writing here H2 which is instance of, that is hello I have written. Okay, जब हमने ये hello लिखा तो H2 के अंदर ये जो रेफरेंस है किसका रेफरेंस है, hello का है ना, ये तो उसी का है। सो हम लोग अब इसे चेक करेंगे। लेट मी रन इट। सो ये हम इसे रन करते हैं, इट इज गिविंग ट्रू। सिमिलरली अगेन हम लोग इसी तरह से हाई का चेक कर सकते हैं। मान लो हमने एक और कुछ ऐसा लिखा, HAI 1 इंस्टेंस ऑफ हेलो I'll write fine. अब से it is giving error basically. So you can apply this to different types के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं where दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो। एक हाई एक अलग टाइप है, हेलो एक अलग टाइप है, दोनों एक अलग अलग क्लासेस एंड बिटवीन दैट आई एम अप्लाइंग, सो इट इज गिविंग द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है ना, इट इज गिविंग द कंपाइल टाइम एरर। सो HAI 1 अगेन आई एम ट्राइंग टू रन इट आउट। देखो इनकॉम्पैटिबल टाइप कैनॉट बी कन्वर्टेड टू द, देखो ध्यान से समझना, यहां पे ये एरर्स को आप समझना सीख जाए। इनकॉम्पैटिबल टाइप com.jtc.p12 high cannot be converted to com.jtc.p12 hello, इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, सो फॉर दैट रीजन हमें इस तरह से करना पड़ेगा इसको, एंड दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है इसमें, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू। हमें अगला काम क्या करना है, हमें अगला काम ये करना है, अगला काम हमें ये करना है कि यही HAI 1 इंस्टेंस ऑफ हाई आई हैव रिटन, ठीक है, हमने HAI इंस्टेंस ऑफ हाई लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई, इस लाइन का मतलब समझ में आया कि देखिए यहां पे ये जो आपने देखा है हेलो एक अलग टाइप है HAI 1, इसीलिए मैंने एक और क्लास A और B लिखा है, क्लास A और B और समथिंग एक क्लास मैंने लिखा है, मैं आपको भी दिखाता हूं। ठीक है, सिमिलरली आई विल रन इट एंड यू कैन सी द आउटपुट। ओके, इट इज गिविंग द ट्रू। एक और लास्ट वाला एग्जांपल, A और B, फाइन A1 है B1 है, सो आई विल डू वन थिंग, A1 इंस्टेंस ऑफ A, ये तो आपका ट्रू देगा, फाइन। A1 इंस्टेंस ऑफ B, ठीक है, B1 instance of B and yes A2. Okay, we'll write A2
a2 instance of A, a2 instance of B. This is what I have written. आप ये क्या करोगे कि इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, आप देखो, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको इसको चेक करना पड़ेगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का, ये बहुत जगहों पे यूज होगा, नंबर ऑफ प्लेसेस इट विल बी यूज्ड, ठीक है। काम की चीज है, बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑल, वी हैव सीन इट, वी हैव डिस्कस्ड इट. So mostly the operator topic, new operator, instance of operator, ternary okay, one more is there. Conditional or ternary operator is there, ठीक है ना। एक हमने int of a is equal to 10 लिख दिया, simple. int of b is equal to हमने 20 लिख दिया, और int of c is equal to I have written 30. ध्यान देना, अब इसको समझना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, int of d is equal to a is less than b, ये हमने किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। And then we are going to apply over here, that is the true or false. ये मैं एक आपको सिंपल सा कंडीशन, इसमें क्या होता है कि हमने अगर यहां पे ये जो कंडीशन यहां पे स्पेसिफाई की गई है, यहां पे जो भी सॉरी 1 सेकेंड, यहां पे जो हमने कंडीशन दिया है, ये कंडीशन अगर सही है, इफ इट इज ट्रू, देन ये ट्रू पार्ट प्रोसेस होगा। अगर ये कंडीशन यहां पे स्पेसिफाइड जो है ये ट्रू नहीं है, सो दिस विल बी द फॉल्स, ये फॉल्स पार्ट प्रिंट करेगा। समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो आपने कंडीशन दिया, एक्सप्रेशन दिया है, ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू वाला पार्ट प्रोसेस होगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स वाला पार्ट प्रोसेस होगा। अब देखो यहां पे हम लोगों ने इसको एज इट इज यहां पे ट्रू एक लिख दिया, एंड दैट इज द अनदर वन इज द, आई विल राइट इट हियर द फॉल्स, ठीक है। अब आप इसको समझना, हम लोग बूलियन की वैल्यू क्या समझ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या यहां पे लिखा, इसका ऐसे समझो। अब इसे हम क्या करते हैं, एक बार लेट मी रन इट, क्या आया यहां पे, ट्रू। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस वन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब है, टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो आपने कंडीशन यहां पे स्पेसिफाई किया है, यहां पे आपने जो भी कंडीशन, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला जो भी यहां लिखे रहेंगे वो प्रोसेस होगा, वो रिजल्ट जाएगा, अगर नहीं तो ये फॉल्स जाएगा। दिस इज व्हाट बेसिकली वी विल कॉल इट एज अ टर्नरी ऑपरेटर। इतना आप दिमाग में बहुत अच्छे से ध्यान से रखिए, ठीक है। आई हैव गिवन एग्जांपल इन योर डॉक्यूमेंट आल्सो, कंडीशनल ऑपरेटर, और बेसिकली वी आर कॉलिंग इट एज एन टर्नरी ऑपरेटर। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे थ्योरेटिकली आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने ऑपरेंड दिया, ठीक है, ये क्या होगा, कोई रिलेशनल ऑपरेटर आप एक्सप्रेशन, बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे। ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, इसके बेसिस पे ऑपरेंड 2 या ऑपरेंड 3, ये ट्रू पार्ट है और ये है फॉल्स पार्ट, ठीक है ना। अब आप ध्यान से, जैसे ये देखो इवेल, ये आपने जो कंडीशन दिया है ऑपरेंड 1 का, ये ठीक है। सो अगर ये ट्रू है यहां पे तो ये ऑपरेंड 2 प्रोसेस होगा, अगर ये फॉल्स है तो ऑपरेंड 3 प्रोसेस होगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने इसके एग्जांपल्स को भी दिए हुए हैं, ये आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंट बी इज लेस, ये मैंने एक और एक्सप्रेशन यहां पे अलग अलग आपको दे रखे हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म, ये आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और देन मतलब enough number of examples I have given, in the same concept it is, in the same manner it is.
सो ये आप एक बार इसको भी देख सकते हैं. दिस इज द गुड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी वी हैव गिवन. अब आपको इसमें कंडीशनल ऑपरेटर, ओके फाइन, कंडीशनल ऑपरेटर इज डन. यहां पे आपके नोट्स में एक समरी है, और समरी क्या है कि जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का यहां पे एक एक करके एक्सप्रेशन है. जैसे आप इसको, आपके लिए मैं पढ़ के बता देता हूं. व्हेन यू विल गेट द नोट्स, आपको जेटीसी से ये नोट्स मिल जाएगा. सो रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी इंट टाइप और वाइडर देन द इंट टाइप. ये मतलब जो बहुत सारे ऑपरेशन कर करके जो आप कॉन्सेप्ट समझते हो, तो समरी में ये सब कुछ हमने लिख दिया है, बता भी रखा है, क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. आप इसे प्लीज एक बार क्या करिएगा, रीड आउट करें. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एकदम हाउ नाइसली इट इज. और ये अब आपको एक बार थोड़ा देख के समझना पड़ेगा. एक ये आपको डिवाइड बाई जीरो एंड ऑल NaN वैल्यू क्या नॉट अ नंबर का एक वो होता है, ठीक है. सो ऑल दैट आई हैव गिवन हियर एंड दीज ऑल आर समवेयर द कॉन्स्टेंट्स विच इज अवेलेबल. सो आप यहां से एक बार इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. So here we have completed a topic called as operator. और आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. इन सेशंस के अंदर मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि हमें कहाँ पे टाइम सेव करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट को कितना डिस्कस करना चाहिए. एंड फॉर यू वी हैव गिवन एनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. तो आप क्या नोट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. सो दैट विल मींस गिव यू ह्यूज बेनिफिट अगर आप इसको सही से समझते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं तो, ठीक है ना. सिंस टाइम लगेगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको चीजों को और एक उस तरह से समझने के लिए, करने के लिए. सो दैट इज ईच एस्पेक्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस. एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन इन द डॉक्यूमेंट ऑल्सो. समवेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. जहां मुझे लगा कि नहीं इस पे बहुत थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, आई हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है. और आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप जरूर हम लोगों को बताइए. क्लासेस कैसी लग रही हैं, एंजॉय कर रहे हो, नोट्स अपना बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, सब कुछ बता दीजिए. और लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स तो करिए ही. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.